ओके भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। और वर्क एनर्जी एंड पावर का न्यूमेरिकल्स का लेक्चर चल रहा है। मैं वर्कशीट का नंबर 49 कर रहा हूं। उसमें कहा है स्फीयर ऑफ स्टील ऑफ मास 15 kg, so m1 is 15 kg, moving with a velocity of 12 meter per second, so v1i is 12 meter per second along x axis, collides elastically with a stationary sphere of mass 20 kg। मतलब जो 20 kg का स्फीयर है उसकी इनिशियल स्पीड है 0। if the velocity of the first sphere after the collision, so v1f दिया हुआ है 8 meter per second and moving at an angle theta 1 is 45 degree with the x axis, find the magnitude and direction v2f चाहिए और theta चाहिए of the second sphere। okay, let me draw a diagram, it will be clearer after the diagram। this is sphere 1 m1, this is v1i जो x axis के ऊपर है, this is 2 m2 जिसका इनिशियल स्पीड 0 एंड कोलिजन के बाद द डायग्राम इज एब्सोल्युटली सेम जो हमने देखा था। 1 goes like v1f and theta 1 is 45 degree and this is 2 which is v2f and ये एंगल है theta 2। v2f और theta 2 फाइंड करना भाई। एवरीबडी नोज इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम इज कंजर्व्ड एज मोमेंटम is conserved, so m1 v1 I bar, I will repeat the same thing that I did, v1 m1 v1 f bar plus m2 v2 f bar। and अब मैं कंपोनेंट्स लेने वाला हूं। v2i नहीं आएगा क्योंकि वो तो 0 है। टेक कंपोनेंट, सबसे पहले x कंपोनेंट्स लेना है। you are well versed with this, so v1i only in the x axis, so m1 v1i is m1 v1f cos theta 1 plus m2 v2f cos theta 2। any issues here? no issues, we are good? Yes. and what I'm going to do now, these equations are good, I'm going to substitute the values in these equations now। m1 है मेरे पास, I hope you can do the calculations, stay with me, hold the line। v1i 12, m1 15, v1f 8 and cos 45 plus m2 कितना है 20 into v2f cos theta 2। इसमें से ना ये है ना ये है, 15 into 12 is 180। अच्छा, cos 45 is 0.707, 15 into 8, hey, 15 into 8 is 120, 120 into 0.707, can anyone tell me how much it is? 84.84. very well, and in a quick idea 180 minus 84.84 कितना हो जाएगा? 95.16. डिवाइड बाय 20, डिवाइड बाय ये 20, 4.758. वेरी गुड। ये मेरा आ गया इक्वेशन नंबर 2। और अब y कंपोनेंट ले लेंगे भाई। m1 और v1i का कोई y कंपोनेंट है ही नहीं, तो इट इज 0। दिस इज गोइंग टू बी m1 v1f sin 45 and this is minus m2 v2f sin theta 2। ओके, m1 कितना है? m1 15, v1f 8, sin 45 is 0.707। don't need to do this क्योंकि वो 84.84 आपने किया हुआ है। बस 84.84 को डिवाइड बाय 20 करें, वो भी जरूरत नहीं है। 4.242 देखो तो, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो ladies and gentlemen, I have got v2f sin theta 2 as something, v2f cos theta 2 as something। you know, if I want v2f I should square and add 2 and 3, so squaring and adding 2 and 3, so let us go। मैं ये सब कुछ उड़ा रहा हूं, ये उड़ा दूं या ऊपर वाला उड़ा दूं? सर ऊपर वाला उड़ा दूं। so v2f sin theta 2 the whole square plus v2f cos theta 2 the whole square, sin square plus cos square is 1,
V2F square is 4.242 the whole square plus 4.758 the whole square. Anybody rocking and rolling right now? 4.242 the whole square, or should I do it? $17.99, which is करीब 118, 4.758, 22.64, and 22.64 plus 18, 40.64 का रूट 6.35, 6.375, 6.375, 6.37 तक रखना है तो भी रखो यार, डजंट मेक एनी डिफरेंस. और अब इसको उठा करके इसमें लगा दिया जाए, पुट इन 3, पुट 4 इन 3. अभी इसको जाना पड़ेगा, डायग्राम को जाना पड़ेगा. So put 4 in 3. I hope you got your logbooks. So V2F तो 6.37, sin theta 2 is 4.242. So sin theta 2 is 4.242 divided by 0.6659, and theta 2 will be sin inverse 0.6659. 41 42 के आसपास होना चाहिए. इफ आई कंसल्ट माय चार्ट, साइन इनवर्स 0.6659, 0.6626, 41, 6639, 41 डिग्री 42 मिनट्स के आसपास. 52 के साथ 7 और जोड़ दो, 42 and 3 45, 41 डिग्री 45 मिनट. व्हाट्स है Yes, sir. जी? है? मैंने क्या अज्यूम किया? 41 डिग्री के आसपास होगा. अरे बेटा 0.66 है, अब साइन इनवर्स 0.5 है तो 30 से आगे है, बरोबर है. साइन 45 कितना था? 0.707, 0.707 से काफी करीब है ये, तो 41 42 के आसपास हो सकता है. एक इन्फॉर्म्ड गैस है ये, इसको गैस नहीं कह सकते, कैलकुलेटेड सोच है कि शायद इसके आसपास होगा, तो मैंने उसके आसपास ही ढूंढा. अब जैसे कोई इंसान खाने का शौकीन हो तो पूरे घर में उसको कहां ढूंढने की शक्यता ज्यादा है? किचन है, डाइनिंग रूम है, और मैक्सिमम नहीं तो वॉशरूम है. वही मिलेगा. अब तू ऐसे खाने पीने के शौकीन इंसान को तू गैराज में ढूंढे जहां वो काम कर रहा, पॉसिबल है? नहीं है. वो लास्ट देखेगा ना तू प्रोबेबिलिटी का, मैं वहां पे. ओके, इज दिस अग्रीएबल? एनी इश्यूज? Yes, sir. Okay, let's go. Now I'm getting back to the textbook. Illustration 6.6 करने जा रहा हूं. I hope you're there with me. बहुत ही बढ़िया illustration है. बस इंपॉर्टेंट एक ही है, इसमें एक नया फॉर्मूला आता है. एक्चुअली ये फॉर्मूला जेई में हम देख चुके हैं, तो अपने लिए शायद नया नहीं होगा, बट बोर्ड में पहली बार देखा हमने इस फॉर्मूला को, तो ये एक नया फॉर्मूला रहेगा हमारे लिए. इससे पहले कि मैं इलस्ट्रेशन 6.6 कर लूं, मैं आपको वो फॉर्मूला के दर्शन करा देता हूं. तो फॉर्मूला का दर्शन, मंदिर खुले नहीं है फिर भी दर्शन जरूरी है. अच्छा, इंटीग्रल x रेज टू n dx, इंटीग्रल के बारे में जानकारी सबको, x रेज टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1. इंटीग्रल dx इज x, पर अगर मैं कहूं इंटीग्रल dx बाय x, ये हमने जेई में किया था, इज नेचुरल लॉग x या लॉग ऑफ x टू द बेस e. याद आता है? ऑल्सो नेचुरल लॉग a प्लस नेचुरल लॉग b is natural log AB. Natural log A minus natural log B is natural log A by B. And natural log A, natural log मतलब log to the base E,
is 2.303 log of a to the base 10. मैं ये चीजों को आज यूज करने वाला हूं. सो लेट्स गो टू इलस्ट्रेशन 6 पॉइंट क्या था 8 नहीं 6.6. 6.6. They tell me that a force is given as minus k by x and this force ranges from 0.1 meter to 2.01 meter. बराबर. मास दिया हुआ है कुछ बॉडी का, मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा. What is the data? 1 kg. Sure. हाँ ये रहा. मास इज 1 kg एंड उसकी इनिशियल स्पीड दी हुई है. What is the initial speed? 2 meter per second. And what are you supposed to find? Blah 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 blah. K is 0.5. ये जो यहाँ K है ना ये 0.5 है. What is the final kinetic energy KF and speed VF as it enters this rough patch? Okay. By as simple as it looks and as simple as it gets by work energy theorem. Do you remember? The change in kinetic energy is equal to the net work done, and change in kinetic energy is kf minus ki, and you remember work done is integral f dx initial position से final position तक, x1 से लेकर x2 तक. f की जगह माइनस k by x. बस अब ये इंटीग्रल के साथ ही खेल खेला जाएगा. x1 और x2 की वैल्यूज बाद में डालूंगा मैं. सो व्हाट आर यू लेफ्ट विथ? kf माइनस ki इज माइनस k बाहर आ गया इंटीग्रल dx by x. इज इट सरप्राइजिंग? नो. इंटीग्रल dx by x देखा हमने, नेचुरल लॉग x. तो नेचुरल लॉग x कहां से लेकर कहां तक? x1 से लेकर x2 तक. x1 क्या है? 0.1 से लेकर 2.01 तक. ओके तो आओ जी, पहले अपर लिमिट तो नेचुरल लॉग 2.01 माइनस लोअर लिमिट नेचुरल लॉग 0.1. कोई शक कहीं पे? कैसे डाला, कहां डाला, क्यों डाला, कब डाला? कोई प्रॉब्लम? x की जगह पहले 2.01 डाला, माइनस करके x की जगह फिर 0.1 डाला. टेल मी यस और नो. ओके. And natural log a minus natural log b is natural log a by b. Natural log 2.01 by 0.1. It is as easy as it looks. Natural log 20.1. Okay? चलो फिर किस बात की है देरी? तो kf फाइंड करना है, तो ये माइनस ki को इधर ले आओ. तो ki माइनस k, ये नेचुरल लॉग 2.0 20.01, इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो हमारे टेक्स्ट बुक में जो पीछे लॉगरिथम्स दिए वैसे नहीं दिए. इट इज टू द बेस 10. तो अब देखिए नेचुरल लॉग 20.01 यहां से लूंगा मैं, 2.303 लॉग टू द बेस 10 20.1. इज इट ओके? सर ये समझ नहीं आया. मैंने ये माइनस के आई को इधर ले लिया, ये ठीक है. के आई वो समझ में आ गया सर. क्या? नेचुरल लॉग समथिंग इज 2.303 लॉग समथिंग टू द बेस 10. ये किया है मैंने. ये लॉग टू द बेस ई है ना. नेचुरल लॉग मतलब लॉग टू द बेस ई. ये बेस, इसको बेस कहते हैं. अब अपने लॉगरिथम टेबल में टू द बेस 10 होता है, टू द बेस ई नहीं होता. तो उसको अगर चेंज करना हो, टू द बेस 10 लाना हो, तो 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो मैंने किया. दिव्या, यस सर. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू? यस सर. सर ये रेस टू है सॉरी, जो हमने लॉग
अरे यार लास्ट फॉर्मूला सर। यस सर, लास्ट फॉर्मूला को नेचुरल लॉग इज सेम एज लॉग टू द बेस ई, पर हमारे पास लॉग टू द बेस ई नहीं होते, हमारे पास लॉग टू द बेस 10 होता है। तो लॉग टू द बेस ई को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 उसके आगे लगाना पड़ता है। सो लॉग 20.01 ये टू द बेस ई है, बन गया लॉग 20.1 टू द बेस 10, पर आगे लग गया 2.303। अग्रीएबल पीपल? यस इज देयर अ प्रॉब्लम एनीवेयर? सर, ए मल्टीप्लिकेशन में किसके साथ बेटा, किसके साथ? वो लास्ट फॉर्मूला में लॉग बेस 10 इनटू। अगर मैं ये ना रखूं तो तू किसका लॉग ले रहा है? लॉग किसका? मैं पूछ रहा हूँ कि बेस टू ए है या मल्टीप्लाई बाय ए है? दिस इज लॉग ऑफ ए, ऑफ। लॉग किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, लॉग किसी चीज का लिया जाता है, जैसे log 5। तो दिस इज नॉट log मल्टीप्लाई बाय 5, दिस इज log ऑफ 5। हाँ सर, समझ गए। बराबर। बस इंपॉर्टेंट एक ही है कि इसके नीचे बेस क्या है। जब मैं कहूं बेस ई है, अब इसकी वैल्यू log 5 टू द बेस ई की वैल्यू तू फाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे को जो लॉग टेबल दिया हुआ है उसमें log टू द बेस 10 है। तो उसका और इसका रिश्ता किस तरह फाइंड होगा कि दिस इज 2.303 log 5 टू द बेस 10। तो तू तेरे लॉगरिथमिक टेबल में देखेगा कि 5 का लॉग क्या है, वो लगाएगा यहां पे, उसको मल्टीप्लाई बाय 2.303 करेगा, तो तेरे को log 5 टू द बेस ही मिल जाएगा। यस बराबर, कोई शक? ओके तो अब मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने जा रहा हूं, हाफ एम वी आई स्क्वायर माइनस ये के की वैल्यू लगाऊंगा 2.303। अच्छा, अब लॉग फाइंड करना भी आपको सिखाता हूं। आई एम श्योर आपके पास लॉग टेबल पड़ा ही होगा। ओके सबसे पहले लॉग 20.1 का फाइंड करना है, टू द बेस 10 है, तो लॉगरिथमिक टेबल खोल के आप बैठ सकते हैं। अच्छा, डेसिमल के पहले कितनी डिजिट्स है? 2। -1 करो, कितनी हुई? 1। तो दिस विल बी 1 पॉइंट। अब आप देखो तो 20 का 1 कितना आया? मेरे पास लॉग टेबल नहीं है। 3032, तो 1.3032। अगर सिर्फ 20 होता ना तो 3010 होता, डजेंट मैटर। मिला आप लोगों को? सर, कैसे ढूंढा? मतलब तू अचानक तू तब तक सोता रहता और फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं फिर उठ जाता, ऐसा होता? 20 डेसिमल के पहले कितनी डिजिट्स है? 2। क्या कह रहा हूं? डेसिमल के पहले कितनी डिजिट्स है? 2 डिजिट है ना, 2 and 0। यस सर। उसमें से 1 माइनस कर ले, मैं तरीका समझा रहा हूं तुझे। तो कितना बचा? 1। तो यहां 1 पॉइंट आ गया। और अब 20 का 1 देख तो लॉगरिथमिक टेबल में कितना है? 3032। यस सर। नहीं, वो तो तूने यस सर बोला, उसको तो ढूंढने दे। दिव्य, ढूंढ रहे तू? सर, कैसे ढूंढते हैं? बेटा लॉगरिथम्स है तेरे पास? जिसमें हम साइन कॉस टैन ढूंढते हैं वो लॉगरिथमिक टेबल होता है, लॉग टेबल। हाँ सर, है सर। है तो निकाला? अच्छा, आई थिंक उसका पहला ही पेज होगा, लॉगरिथम्स। यस सर। ओ चचा, ओ चचा, यस सर। मिला लॉगरिथम्स? हाँ सर।
ओके, उसमें पहला ही आई थिंक होगा 2 का 0 और 1 कितना होता है? 20 का 1, 20 की 3032 yes sir वाह वाह, चलो अच्छी बात है, बधाइयां। बराबर। अच्छा, मैं तुमको एक और चीज दिखाऊं। अगर ये log 10 ऑफ 201 होता तो किस तरह होता? ये 201 कितनी डिजिट है डेसिमल के पहले? 3 में से 1 माइनस कर दो, कितनी होगी? 2 पॉइंट। फंडा वही होगा, 20 का 1 3032। दिखाई दिया? yes sir समझ में आया? अरे बताओ, डेसिमल के पहले कितनी डिजिट है? 1। 1 माइनस 1 कितना होता है? 0। 0 sir अब 53 का 2 देखो कितना हो रहा है? 50 का 0.7 0.6990 0.7 के आसपास होगा। 7 सुना नहीं दिया। 751 Agreeable, ladies and gentlemen, I mean gentlemen, कोई शक? ओके, दिव्यलाल यू आर ओके कि एक और दो? ये वाला समझ देखा है ओके, तो फटाफट हाफ मास कितना है? 1 kg, m1 नहीं है, सिर्फ m है। एंड इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर, k कितना? 0.5 इंटू 2.303 इंटू 1.3032। चलो जरा 2 का स्क्वायर बाई 2, दिस इज 2 माइनस 2.303 into 1.3032 into 0.5 1.5, इसका आंसर है 1.5। 2 minus 1.5 सो 2 minus 1.5 is 0.5, तो यहीं पे लगा देते हैं kf is 0.5 जूल। एंड अब तुमको फाइनल स्पीड भी पूछी है, तो kf विल बी हाफ m vf स्क्वायर। इसको राम राम बोल देते हैं फटाफट। So kf is half m vf square, that is 0.5. So half into मास कितना हुआ करता था? 1 किलो ना। So 2 यहां से यहां जाएगा, तो vf square is 1, तो vf is 1 मीटर पर सेकेंड। चेक। yes Is this agreeable? Any doubt? No? ओके, लेट्स मूव ऑन। मैं करने जा रहा हूं न्यूमेरिकल नंबर। एक बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल हमारा इंतजार कर रहा है, न्यूमेरिकल नंबर 16। आपने देखा न्यूमेरिकल नंबर 16 को? नहीं देखा होगा तो मैं, अच्छा देखा है, कैसा दिखता है? क्या दिखता है? ओके, तो हाँ, तुमने लाइन चेक कर ली नहीं कितने लाइन का है? तो नंबर ऑफ लाइन से पता चलता है कि कितनी इज्जत दूं उसको, ऐसा? अच्छा, तो न्यूमेरिकल 6.16 एकदम सादा मस्त न्यूमेरिकल है, जो ये कहता है कि two identical ball bearings in contact with each other resting on a frictionless table are hit head on by another ball bearing of the same mass moving initially with a speed v. Okay, आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड पे 2 बॉल्स हैं, 3 है एक्चुअली, ये 2 और ये 3, ये दोनों स्टेशनरी है, स्टेशनरी, इनकी स्पीड है 0, और ये 1 वाला
कितना मास है, लेट अस कॉल इट m, और वो जा रहा है, टकरा रहा है विद स्पीड v। ओके, बाकी दोनों जीरो है, ये जा रहा है विद स्पीड v। सबसे पहले कोई मुझे बता सकता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। भाई वी है ना, बीजू तो कोई है नहीं। ओके मैगिज, कोलिजन इज इलास्टिक लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल रिजल्ट आफ्टर कोलिजन? तो सबसे पहले नंबर 1, भाई कोलिजन इलास्टिक हो तो क्या कंजर्व होता है? टोटल लीनियर मोमेंटम भी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी भी। सो हमको तीनों ऑप्शंस की टोटल काइनेटिक एनर्जी चेक करनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 में ये 1 वाला जो है उसकी स्पीड 0 है, और 2 और 3 इन सब का भी मास इक्वल है, और वो जा रहे हैं v/2 के साथ। कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी फाइनल काइनेटिक एनर्जी kF1? इसका तो 0 है, ये कितनी स्पीड पे जा रहे हैं? v/2, तो हाफ m v/2 द होल स्क्वायर, और ये भी कितनी स्पीड पे जा रहे हैं? v/2 सर। भाई कोई खोलने की वो लेगा? हाफ m कॉमन ले लिया, v²/4 प्लस v²/4 कितना होता है? v²/4 प्लस v²/4 v²/2, एंड 2 2s आर, क्या बात। अब सबसे पहला इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना? mv²/2। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना? mv²/4। तो क्या वर्कआउट कर सकता है? नहीं। सो एज kF1 नॉट इक्वल टू ki, ऑप्शन 1 इज नॉट पॉसिबल। अच्छा ऑप्शन 2, भाई आप लोग देख के रखो क्या हिसाब किताब है ऑप्शन 2 का। 1 और 2 दोनों 0 भये, और 3 जो है वो अकेला निकल पड़ा स्पीड v के साथ। क्या लग रहा है? इसका तो 0 प्लस हाफ m और ये v का स्क्वायर। भाई कैसा लग रहा है आपको? क्या मानना है आपका? क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से इक्वल है? As kF2 is ki, so option 2 is possible है। चलो चेक 3 का भी चेक कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं सीन सपाटा। क्या लगता है आपने 3 का देखा? 1 2 3 तीनों जा रहे v/3 के साथ। ओके, तो इसका कैसे होगा जी? kF3 हाफ m इंटू v/3 द होल स्क्वायर, इसका भी हाफ m इंटू v/3 द होल स्क्वायर, हाफ m v/3 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, एंड 3 का स्क्वायर इज 9, 9 2s आर 18, कितना हुआ? क्या पॉसिबल है ये? वाह वाह वाह। सो एक्चुअली इसमें कुछ लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं होती, तुम खड़े खड़े चेक कर सकते हो। सो ऑप्शन 3 इज नॉट पॉसिबल। ओके, अच्छा 6.14 देखिए तुरंत। मैं जानता हूं टाइम हो चुका है, पर थोड़ी देर में निकलेंगे। अ मॉलिक्यूल इन अ गैस कंटेनर हिट्स अ हॉरिजॉन्टल वॉल with speed 200 meter per second and angle 30 degree, and क्या बोलता है आगे? मैं मल्टीटास्किंग नहीं कर पाता। ओके, और बोलता है कि with angle 30 with the normal and rebounds with the same speed, अर्थात तो ये वॉल है और ये यहां पे एक मॉलिक्यूल आया ये स्पीड से एंगल 30 बनाते हुए विद द वॉल विद द नॉर्मल, एंड ये ऐसा गया
वही स्पीड से 200 से आ रहा था, 200 से जा रहा। ओके, इज द मोमेंटम कंजर्व्ड? ऑफ कोर्स, इनिशियल मॉम इज फाइनल मॉम। एंड इज द कोलिजन इलास्टिक और इनइलास्टिक? भाई कोलिजन इलास्टिक या इनइलास्टिक के लिए काइनेटिक एनर्जी का सेम होना जरूरी है ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट? हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। आपने देखा स्पीड सेम रही, तो कोलिजन विल बी इलास्टिक। यस, मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड and as Ki is Kf, so collision is elastic and not elastic. इसी के जैसा छोटा सा नंबर है ये 6.17। छोटे छोटे ले लेता हूं फटाफट। अब ये ऐसा सीन है कि ये मैं 2 केसेस बता रहा हूं आपको। यहां एक बॉल रखा है, ये कौन सा बॉल है? B, और यहां से यह है बॉल A, इसका भी मास m है। अब मैं इसको छोड़ा, ये ऐसा आया टिक 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 टिक, और हिट्स द अनदर बॉब B of the same mass at rest. How high does the bob B rise after the collision? And neglect the size of the bob, assume collision to be elastic. भाई तुमको याद है लास्ट टाइम मैंने केस दिया था, दिव्य जाके आर्या को टकरा रहा है। दिव्य, सपोज दोनों दिव्य और आर्य का मास सेम है। दिव्य जा रहा है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड और आर्य को टकरा रहा है। आर्य स्टेशनरी है। कोलिजन के बाद दिव्य की स्पीड कितनी होगी? 0। और आर्य कितनी स्पीड से चलेगा? 10 मीटर पर सेकंड। तो इसकी स्पीड लेटेस्ट से v है, वो आके इसको रेस्ट पे टकरा रहा है। एज कोलिजन इज इलास्टिक, ये बिफोर का सीन है। इस बॉब को बी कहते हैं, ये इसको टकरा रहा है। अब कोलिजन के बाद ये आफ्टर का सीन कैसा होगा? डू यू अग्री? वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएगी, तो ए वाला जो है रेस्ट पे आ जाएगा और बी वाला उतना ही ऊपर चढ़ जाएगा जितना ए वाला पहले था। कैन यू सी दिस? ये ढक 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 करके आया, इसको टकराया। जैसे ही इसको टकराया वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई, ए रेस्ट पे आ गया और बी उसी तरह आगे बढ़ गया। इज दिस अंडरस्टैंडेबल? तुमको शायद तुमने कभी देखा हो, ऐसा खिलौना मिलता है, ये ऐसा वो होता है और इस पे 5। यस सर, देखा हुआ है। और यहां से तुम 1 लेके मारते हो तो यहां से सिर्फ 1 निकलता है बाहर। देखा है कभी? क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है, तो यहां से अगर 1 जितना मारेगा तो ये बाकी सब नहीं उठ सकते, क्योंकि वो मोमेंटम ट्रांसफर करके इसको दे देते हैं। तो ये जैसे यहां पे आता है, ये वाला ऊपर उठ जाता है। अगर तुम 2 लोगे ना तो यहां से सिर्फ 2 निकलेंगे बाहर। सो जैसे ही ये इसको देगा, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये ऊपर चढ़ जाएगा। जैसे ये इसको मारेगा, इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, ये ऊपर चढ़ जाएगा। आई एम श्योर यू सीन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, है ना? तो दिस आइडिया इज बेस्ड ऑन द सेम थिंग। तो यहां पे ये 17 हो गया। मैं करने जा रहा हूं, और करना है थोड़ा, ऑलरेडी टाइम आउट हो चुका है। आई थिंक लेट्स, या आई थिंक वील डिफर इट टू नेक्स्ट टाइम। आज का लेक्चर काफी डाउट वगैरह में निकला। या मतलब so it will rise to the same height that A was before the collision. Because if it goes with the same speed, then do you agree it has to rise to the same height? Yes, sir. So it's like that. So I think next time मिलेंगे और इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स खत्म कर लेंगे। आई थिंक मंडे इस चैप्टर को खत्म करना एक्चुअली मेरी आज इच्छा थी, बट आज डाउट्स वगैरह में काफी टाइम निकल गया। सो नो इश्यूज, विल डू इट नेक्स्ट टाइम। ऑलराइट, सो सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।